There are a few people I have met in my life. बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको मैं मिला हूँ अपने जीवन में. Every time I come in touch with them, I could know that they were anointed people. जब कभी भी मेरा उनसे संपर्क हुआ है मुझे तुरंत मालूम पड़ा है कि And प्रभु का अभिषेक They इनके ऊपर है. were very few. और ऐसे बहुत कम लोग हैं. And as a young person, I said, Lord, that's what I want to be. और जब मैं एक युवक था मैं बोलता था प्रभु मुझे भी ऐसे ही बनना है. Rivers of living water must keep on flowing. जीवित पानी की नदियां मुझसे हमेशा उभर के बहा जानी चाहिए. So this is the way to seek for the anointing of the Holy Spirit. तो ये तरीके से हमें पवित्र आत्मा की खोज करनी है. There's nothing going to stop me, like nothing could stop Elisha. तो कोई भी चीज फिर हमें नहीं रोक सकता जैसे कोई भी चीज एलीशा को नहीं रोक सकता. And it's in order to serve others. और इसका उद्देश्य है कि हम लोग दूसरों की सेवा कर So सकें. why did Elisha want that anointing? तो क्यों एलीशा को ये अभिषेक चाहिए था? There was no speaking in tongues those days. उस समय कोई अन्य भाषा में बात करने की क्षमता तो नहीं थी. He was saying, as a nation of Israel, I've got to serve them. How in the world can I do it if I'm not anointed? वो बोल रहा था कि मुझे अभी जो यहूदियों का जो देश है उसकी सेवा करनी है तो ये शक्ति के बिना मैं कैसे करूंगा? I've heard a lot of things from you, Elijah, and I can teach that, but that's no use if I'm not anointed. एलिया मैंने तुमसे काफी सारी बात तो सुनी है और समझी है लेकिन सिर्फ वो बोलने से तो मैं कुछ कर नहीं सकता. Knowledge is not enough. ज्ञान काफी नहीं है. There are many people who listen to my messages on YouTube and go and repeat that in their churches. से बहुत लोग हैं जो YouTube में मेरे प्रचार को सुनते हैं फिर जाके अपने कलीसिया में वही Okay, चीज बोलते हैं. I've got no objection. मुझे उससे कोई तकलीफ नहीं है. But if they're not living it themselves, लेकिन अगर वो लोग वो प्रचार को पहले जी नहीं रहे हैं and they're not anointed with the Holy Spirit, और अगर अभिषेक नहीं है उनके पवित्र आत्मा का all they will get is some honor for a wonderful sermon. तो उन्हें बस वो चीज से आदर मिलेगा कि उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रचार किया है. That's all they want. और कई लोग को तो वही चाहिए. The Lord says, okay, you got it. You wanted some honor, you got it. और प्रभु बोलेंगे हाँ तुम्हें आदर चाहिए था तुम्हें मिल गया. No, what we need to seek is for the anointing of the Holy Spirit. लेकिन हमें असल में पवित्र आत्मा की बपतिस्मा की खोज करना है. And we must not rest until we have it. और हमें तभी तक नहीं रुकना है जब तक हम ये पाते नहीं. There's a beautiful verse that has often been in my mind in Isaiah. और आइज़ाया में बहुत ही बढ़िया वचन है जो मेरे दिमाग में कई बार आता है. It's in Isaiah 62. आइज़ाया 62 में आइज़ाया 62 verse 6 and 7. वाक्य 6 और 7. On your walls, oh, Jerusalem refers to the church here. तो यहाँ पे यरूशलेम का मतलब है कलीसिया. On your walls, O church, I have appointed some watchmen. मैंने तेरे शरण पनाह पर पहराए बिठाए हैं. All day, all night, they will never keep silent. वे दिन रात कभी चुप ना रहेंगे. And this is not talking about preaching. और यहाँ पे प्रचार के बारे में बात नहीं हो रही है. You who are reminding the Lord what He should do for His people, don't take any rest for yourselves. तुम जो प्रभु को याद दिला रहे हो कि उसको अपने लोगों की और क्या करना है तुम खुद आराम मत करो. What does it mean by reminding the Lord, as if God forgets something? इसका मतलब क्या है कि वो प्रभु को याद दिला रहा है? क्या प्रभु भूल जाता है कोई चीज? No, He's speaking in a very human way. नहीं, वो एक इंसानों की तरफ से बात कर रहा है. Go to God and say, Lord, you got to do this for your people. हमेशा प्रभु के पास जाओ और बोलो कि प्रभु आपके लोगों के लिए आप ये करो. And this is the verse I like. और ये वचन है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है. Don't give God any rest until He establishes and makes Jerusalem a praise in the earth. और जब तक वो यरूशलेम को स्थिर करके उसकी प्रशंसा पृथ्वी पर ना फैला देता तब तक उसे भी चैन ना लेने दो. What a verse that is. कितना बढ़िया वचन है ये. Lord, until the church is a praise in this town we are living in, कि प्रभु जब तक ये कलीसिया ये शहर में स्थापित नहीं होता I'm going to keep reminding you. तभी तक मैं आपको याद दिलाते रहने वाला हूँ. I'm one of those watchmen who's standing on the walls. मैं एक वो पहरेदार हूँ जो दीवार पे खड़ा है. Our Father, मेरे पिता, hallowed be thy name in this town. आपके नाम आदर हो इस शहर में. It's not being glorified enough. वो आपके नाम को आदर नहीं मिल रहा है ठीक से. Name of Jesus being dishonored. प्रभु का नाम खराब हो रहा है. I want it to be honored. लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसको आदर मिले. That's God's will. तो ये प्रभु की इच्छा है. And if God finds somebody on earth with that burden, और अगर प्रभु कोई व्यक्ति को पाता है इस दुनिया में जिसके मन में ऐसा बोझ है, you think God will not anoint him with the Holy Spirit? तो क्या प्रभु ऐसे व्यक्ति को पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं देगा? He's longing to find such people. वो खोज रहा है ऐसे लोगों को.
who have the same burden that he has. जिनके मन में ऐसी बोझ हो जैसे उसके मन में है, That Jesus Christ must be glorified all over India, कि प्रभु यीशु की महिमा हो पूरे भारत देश में, all over Maharashtra, पूरे महाराष्ट्र में, Bombay, बॉम्बे में, Pune. पुणे में। I remember when we started in CFC 40 years ago. मुझे याद है जब हमने CFC शुरुआत की थी 40 साल पहले। I said, Lord, your name is not being honored in Bangalore. मैंने बोला था कि प्रभु आपके नाम को महिमा या आदर नहीं मिल रहा है बैंगलोर में। We're just 3 or 4 people here. हम बस 3 या 4 लोग हैं यहाँ पर, We're not a big crowd. हम लोग बहुत ही बड़ी भीड़ नहीं है, But we have a burden. लेकिन हमारे मन में एक बोझ है। I have a burden that the name of Jesus should be glorified in India, in Bangalore. और वो बोझ ये है कि प्रभु यीशु के नाम को महिमा मिले हमारे And देश so, में, बैंगलोर में। anoint us with the Holy Spirit. तो हमें अभिषेक कर प्रभु पवित्र आत्मा से। We used to have half days of fasting and prayer. कई बार हम लोग आधे दिन तक उपवास रखते थे, प्रार्थना करते थे। We used to fast and pray alone, on ourselves. कई बार हम लोग अकेले में भी उपवास करके प्रार्थना करते थे, We were desperate. क्योंकि हम लोग बहुत ही उत्साहित थे और खोज कर रहे थे। And that's how God began to do a work. और उस तरीके से प्रभु ने हमारे अंदर एक कार्य करने की शुरुआत की। I want to encourage all of you, as men, be the leaders. मुझे तुम सबको यही प्रोत्साहन देना है कि पुरुष होने के नाते अगुवा बनो। God allowed you to be born as a man, प्रभु ने अनुमति दी है कि तुम एक पुरुष के जैसे पैदा हो, not as a woman. एक स्त्री के जैसे नहीं। Don't behave like a woman. तो एक स्त्री के जैसे बर्ताव मत करो। A woman is meant to be just a follower. एक जो स्त्री है उसका उद्देश्य है या तो उसका न्याय ये है कि वो पीछा करे। She has a great ministry to other younger sisters. उसके पास भी एक सेवकाई का काम है जो उससे छोटी स्त्रियां हैं उनकी ओर। But Paul says, I don't allow a woman to be an elder. लेकिन अपोस्टल पॉल कहता है कि मैं एक स्त्री को एक अगुवा देने की अनुमति नहीं देता। That means leadership is in the hands of men. मतलब अगुवाई जो है वो पुरुषों के हाथ में है। That's why Paul says, God made Adam first, and that was not a mistake. और इसलिए अपोस्टल पौलुस बोलता है कि प्रभु ने आदम को पहले बनाया और वो गलती से नहीं बनाया। Eve was made to be a helper to Adam, not the other way around. और जो हवा जो बनाई गई थी वो एक सहायक के तौर पर बनाई गई थी और उल्टा तरीके से नहीं था ये। So every one of you, if you're born as a man, God wants you to be some type of leader. तो यहाँ पे हर एक व्यक्ति जो एक पुरुष के जैसे पैदा हुआ है, प्रभु चाहता है कि तुम कोई ना कोई तरीके में एक अगुवा बनो। You may not lead a whole church. जरूरी नहीं कि तुम एक पूरे कलेशा के ऊपर अगुवा If you're बनो। married, you can lead your home. लेकिन अगर तुम्हारी शादी हुई है तो तुम्हारे घर के ऊपर तुम्हें अगुवा बनना है। And maybe one other brother younger than you, who knows less of God than you. और हो सकता है एक भाई के ऊपर जो तुमसे छोटा हो और प्रभु के बारे में कम जानता हो। One brother, एक भाई, you can be a leader to him. और उसके ऊपर तुम एक अगुवा बन सकते हो। Say, Lord, I want to be an example. और बोलो कि प्रभु मुझे एक उदाहरण बनना है। Ask God to give you a burden in your heart, प्रभु से बोलो कि प्रभु मुझे एक बोझ दे मेरे मन में, that you want to bless the church in which God has placed you. कि मुझे जो कलेशा में प्रभु ने मुझे डाला है वहां पे एक आशीष बनना है। It is more blessed to give than to receive. ये और आशीष की बात है कि मैं दूं इससे कि मैं पाऊं। Don't come to the church only to receive. कलेशा में बस पाने के लिए मत आओ, Learn to give. सीखो देने के And लिए। by give, I don't mean stand up in the pulpit and preach. और देने का मतलब ये नहीं कि तुम यहाँ पे खड़े रह के प्रचार करो। Get a hold of some brother who you find around you who is lonely and shy and bless him. लेकिन कोई ऐसे भाई की खोज करो जो हमेशा अकेला रहता है, हमेशा शर्मिंदित रहता है और उसके साथ संगति करो। You know, Jesus preached in the synagogue only when he was 30. प्रभु यीशु ने सिनेगॉग में तभी प्रचार किया था जब वो 30 साल के थे। But he was coming to the synagogue every Saturday all those years. लेकिन उसके पिछले दिनों में वो जब भी आते थे सिनेगॉग में शनिवार में, I'm sure he looked around for someone who was looking a bit lonely or shy and went and encouraged him. तो मैं निश्चित हूँ कि कई बार वो देखते रहेंगे कि क्या ये भीड़ में से कोई व्यक्ति है जो हमेशा अकेला बैठा रहता है या शर्मिंदित रहता है। So we could have that type of desire. तो हमारे अंदर भी एक ऐसी इच्छा होनी चाहिए। There's no honor in that. उसमें कोई आदर तो हमें नहीं मिलेगा। Honor is if you stand up in the pulpit and share. आदर तो उसमें मिलता है कि हम लोग यहाँ पे खड़े रह के प्रचार करें। A lot of people like that. और काफी लोगों को ये अच्छा लगता है। But what about this one-on-one ministry, encouraging one another? लेकिन एक आपसी सेवकाई का क्या हम लोग करते हैं? Encourage one another daily. एक दूसरे को प्रोत्साहन देना हर रोज। Let's seek for that. उसकी खोज हमें करनी है। And you'll never know in 1 year how many captives you set free, और तुम ये जान भी नहीं पाओगे एक साल में तुमने कितने बंदे लोगों को छुड़ाया है, how many prison doors you opened for people, कितने कैद के दरवाजे तुमने खोले हैं लोगों के even लिए। though you never stood in the pulpit even once. इसके बावजूद कि तुम एक बार भी यहाँ पे खड़े रह के गलेशिया में तुमने प्रचार नहीं किया है। What a fantastic ministry. कितनी महान सेवकाई है। And when Jesus comes again, और जब प्रभु यीशु वापस आएंगे and the picture becomes clear, और जब सब कुछ साफ हो जाएगा, you may discover that a lot of people who stood in the pulpit just wasted time.
they didn't really help people. और ऐसा हो सकता है कि कितने लोग जो प्रचार करते थे And- खड़े रह के, उन्होंने बस समय का व्यर्थ किया है, उन्होंने कोई बड़ी काम नहीं की है। There were some individuals in the church who people didn't think much of. They were the ones who were opening prison doors and setting captives free. लेकिन कलेशा में से कुछ लोग थे जो हमेशा बैठे रहते थे और ज्यादा कोई आदर नहीं पाते थे, लेकिन वो जाके Because- कैदियों को छुड़ा रहे थे, Because they didn't seek honor. क्योंकि वो लोग कभी भी आदर का खोज नहीं कर They रहे थे। just had a burden to help one person. उनके पास में एक बोझ था कि मैं एक व्यक्ति की मदद करूं। It's not 20 people who came to this house without food. ऐसा नहीं कि 20 लोग ये व्यक्ति के घर पे आए थे खाना मांगते, One man एक व्यक्ति needed food. को खाने की जरूरत थी, And he went to look for food for one man. और ये व्यक्ति अपने पड़ोसी के पास खाना लेने गया सिर्फ एक व्यक्ति के लिए, And he had a burden for one person. और उसके मन में बोझ था एक व्यक्ति के लिए। And Jesus said, pray for the Holy Spirit like that. और प्रभु ने बोला इस तरीके से पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करो। So, dear brothers, let's तो प्रिय भाइयों, behave like men. हमें पुरुषों के जैसे बर्ताव करना है। Let's pray. प्रार्थना करेंगे। It's very easy to get stirred in a meeting like this and then forget about it by tomorrow. आसान होता है कि हम लोग ऐसे मीटिंग के बाद उत्साहित हो जाए और कल सब चीज भूल जाए, But I want you to pray right now, लेकिन मैं- softly in your heart. लेकिन मैं चाहता हूँ इस समय तुम शांत तरीके से अपने मन में प्रार्थना करो। Lord, I want you to put a burning desire in my heart that will never stop. प्रभु मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे मन में एक ऐसी इच्छा डाले जो कभी ना रुके, कभी ना That बुझे। if I'm anointed, I'm going to have a desire for a greater anointing. अगर मैंने अभिषेक पाया है तो मेरे अंदर और भी अभिषेक पाने की इच्छा मुझे चाहिए, And more and more and more and more till you come again. और ज्यादा मुझे अभिषेक चाहिए जब तक तू वापस नहीं आता। You may not be one of the clever, great, famous ones in the church. हो सकता है कि तुम कलेशा में सबसे मशहूर या सबसे होशियार ना हो, You may be one of the unknown ones. तुम हो सकते हो सबसे जो कोई, तो ऐसे व्यक्ति हो सकते हो जो But- कोई भी नहीं जानता। Ask God for an anointing and you can end up being a greater blessing than anybody else. लेकिन अगर तुम प्रभु का अभिषेक ये पाओगे तो तुम कोई भी और व्यक्ति की तुलना में ज्यादा आशीषित व्यक्ति बनोगे। And don't worry about your age. और कभी भी अपनी उम्र का ख्याल मत रखो। Heavenly Father, पिता परमेश्वर, as we seek you, I pray that you will meet the need of many of the brothers here. जैसे हम तेरी खोज करते हैं, मैं विश्वास रखता हूँ तू कई लोगों की जरूरत को आज पूरा करेगा। We cannot serve you without the anointing of the Holy Spirit. आपके पवित्र आत्मा के अभिषेक के बिना हम आपकी सेवा नहीं कर सकते। Deliver us from such a foolish thought that we can. हमें ऐसे व्यर्थ विचार से तू बचा प्रभु। Help us to seek you. मदद कर प्रभु कि हम तेरी खोज That कर your name सकें, be glorified and you build a strong church here. ताकि आपके नाम को महिमा मिले और आपके लिए हम लोग एक अच्छी कलीसिया स्थापित कर In सकें। Jesus' name. प्रभु यीशु के नाम में। Amen.